روس کی مخالفت کے باوجود امریکہ نے یوکرین کو مزید $700 ملین کی فوجی مدد دینے کا اعلان کیا۔ اتوار کے روز امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور وزیر دفاع لائیڈ اسٹن نے کیف کا دورہ کیا اور یوکرینی صدر زیلنسکی سے ملاقات کی۔ میٹنگ کے بعد یوکرین کی طرف سے جاری کی گئی فوٹیج میں زیلنسکی نے امریکی امداد کے لیے اظہار تشکر کیا اور بائیڈن کی ذاتی حمایت کے لیے ان کی تعریف کی۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ روس یوکرین میں اپنے مقاصد میں ناکام ہو رہا ہے۔ لائیڈ اسٹن کا کہنا ہے کہ اگر یوکرین کے پاس صحیح ہتھیار ہوں اور اسے حمایت ملے تو وہ جنگ جیت سکتا ہے۔ اسٹن کے مطابق جنگ میں جیت حاصل کرنے کے لیے خود پر بھروسہ ہونا ضروری ہے۔ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ روس یوکرین پر ظلم ڈھا رہا ہے لیکن یوکرین کے جوان ڈٹے ہوئے ہیں۔ فروری کے اواخر میں روس کے حملے کے بعد کیف کا یہ اعلیٰ ترین سطح کا امریکی دورہ تھا۔ روس نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین کو مزید ہتھیار فراہم نہ کرے ورنہ مزید نقصان ہوگا۔ واشنگٹن میں ماسکو کے سفیر نے کہا کہ روس نے امریکہ سے کہا کہ وہ یوکرین کو مزید ہتھیار بھیجنا بند کر دے اور خبردار کیا کہ مغربی ممالک کی جانب سے ہتھیاروں کی فراہمی تنازع کو ہوا دے رہی ہے اور اس سے مزید نقصان ہوگا۔ امریکہ میں روس کے سفیر اناتولی اینتونوف نے کہا کہ اس طرح کے ہتھیاروں کی فراہمی کا مقصد روس کو کمزور کرنا ہے لیکن وہ یوکرین میں تنازع کو بڑھا رہے ہیں اور کسی قسم کے امن معاہدے تک پہنچنے کی کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین پر ایک معروف روسی صحافی کے قتل کی سازش کا الزام لگایا۔ پوتن نے جنرل پروسیکیوٹر آفس کے بورڈ میٹنگ میں حکام کو بتایا کہ روس کی فیڈرل سیکیورٹی سروس نے ایک دہشت گرد گروپ پر پابندی لگائی ہے جو ایک مشہور روسی ٹی وی صحافی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы. Результативность работы по всем ключевым направлениям. Повышенное внимание уделять защите законных прав и свобод граждан. На первый план выходит другая задача – расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка. Не получается. Наше общество проявляет... یوکرین کے بندرگاہی شہر ماریوپول کے ایزوسٹال سٹیل پلانٹ کی اس وقت کیا صورتحال، یہ دیکھیں رپورٹ۔ یوکرین کا بندرگاہی شہر ماریوپول تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ یہ شہر روسی حملوں میں مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ ہر طرف بربادی کے نشانات موجود ہیں۔ روسی حملوں میں عمارتیں کھنڈر بن گئی ہیں۔ شہری کسی طرح جان بچا کر دوسرے علاقوں میں پناہ لے رہے ہیں۔ یوکرین نے روس پر زور دیا ہے کہ وہ تباہی کے کگار پر کھڑے ماریوپول میں اسٹیل پلانٹ میں موجود یوکرینی فوجیوں اور شہریوں کو نکالنے کے حوالے سے مذاکرات کے خصوصی دور کا انعقاد کرے۔ یوکرین کی طرف سے روس سے یہ اپیل آزوسٹال اسٹیل پلانٹ میں پناہ لینے والے لوگوں کی فوٹیج سامنے آنے کے بعد کیا گیا۔ اسٹیل پلانٹ میں پناہ لیے خواتین کو یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا کہ ان کے پاس صرف پانی اور خوراک ہے جو چند دنوں تک ہی چل سکتا ہے۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ روسی فورسز نے ماریوپول میں یوکرین کے اہم گڑھ آزوسٹال اسٹیل پلانٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اسٹیل پلانٹ میں ایک اندازے کے مطابق 1000 سے زائد شہری پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ اسٹیل پلانٹ جنوبی ماریوپول میں مزاحمت کا آخری گڑھ بنا ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سینکڑوں یوکرینی افواج اور تقریباً 1000 شہری وہاں زیر زمین سرنگوں میں چھپے ہیں۔ یوکرین کی مسلح افواج کی کمان نے فیس بک پر لکھا کہ روسی افواج آزوسٹال کے علاقے میں فائرنگ اور جارحانہ کارروائیاں کر رہی ہیں اور ساتھ ہی شہری انفراسٹرکچر پر فضائی حملے کر رہی ہیں۔ ماریوپول ایک ایسا شہر ہے جس نے 24 فروری کو روسی حملے کے آغاز کے بعد سے مسلسل بمباری دیکھی ہے۔
खबर है कि रूस ने मोरियोपोल के स्टील प्लांट के इर्द गिर्द जंग बंदी का ऐलान कर दिया। उधर यूक्रेन के वजीर आजम डेनिस शमाइल ने कहा कि रूसी हमले के बाद से जारी जंग उस वक्त खत्म हो जाएगी जब हम अपने इलाकों को रूसी काबजीन से पाक कर लेंगे। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि मशरकी यूक्रेन में सेहत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इदारे का कहना है कि मोरियोपोल और दीगर महसूर इलाकों में हजारों लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। WHO के हुक्काम का कहना है कि ये बहुत जरूरी है कि उन्हें मोरियोपोल और मशरकी यूक्रेन में जंग से मुतासरा इलाकों तक फौरी रसाई दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मगरबी रूस में ब्रांसिक में तेल जखीरा करने की एक तंसीब में आग लग गई। रूसी हुक्काम ने आग लगने के वाक़े की तस्दीक की है। रात के वक्त ऑनलाइन पोस्ट की गई वीडियो में आग के धुएं आसमान में उड़ते हुए दिखाई दिए। रूस के सरकारी टीवी के मुताबिक, जिसने आग की फुटेज भी जारी की, आग सुबह 2 बजे लगी। रूसी टीवी का कहना है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजूहात की तहक़ीक़ात की जा रही है। यूक्रेन की इलाकाई फौज ज़ापोरिज़िया शहर में रूसी जारहियत को रोकने के लिए खंदकें खोदकर अपनी दिफाई लाइनों को मजबूत कर रही है। ज़ापोरिज़िया शहर के इलाकाई मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के तर्जुमान ने कहा कि शहर को हर मुमकिन समत में से महफूज रखा जाना चाहिए क्योंकि दुश्मन बेहद मक्कार है। उनका कहना है कि नई किलाबंदी यूक्रेन के फौजियों की जानें बचाएगी। इससे कबल यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि रूस ने लोगों को ईस्टर की तातीलात के दौरान खरसोन और ज़ापोरिज़िया इलाकों के मकबूजा इलाकों से निकलने की इजाज़त नहीं दी। इमानुएल मैक्रोन एक बार फिर फ्रांस के सदर मुंतखब हो चुके हैं। यह जीत इसलिए भी तारीखी है कि फ्रांस में 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी सदर को दोबारा चुना गया हो। लेकिन मैक्रोन के दोबारा सदर बनने पर फ्रांस के मुसलमानों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। फ्रांस में इमैनुएल मैक्रोन अपनी हरीफ मरीन ली पेन को शिकस्त देकर 5 सालों के लिए दोबारा फ्रांस के सदर मुंतखब हो चुके हैं। 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सदर को दोबारा मुंतखब किया गया हो। जीत के बाद एफिल टावर के करीब पुरजोश हामियों से खिताब करते हुए इमैनुएल मैक्रोन ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब वो उनके भी सदर हैं जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया है। इस मौके पर उन्होंने फ्रांस को तरक्की की राह पर गामजन करने के अज़्म का इजहार किया। Après 5 années de transformation, d'heures heureuses et difficiles, de crises exceptionnelles aussi, ce jour du 24 avril 2022, une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République durant les 5 années à venir. यूरोप में फ्रांस ऐसा मुल्क है जहां मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है और 2015 में पेरिस हमले के बाद से ही मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद में इजाफा हुआ। वहीं हुक्मरान तबके ने भी खुलकर इस्लाम मुखालिफ बयानात दिए। यूँ तो इमैनुएल मैक्रोन ने भी इक़्तिदार में रहते हुए इस्लाम मुखालिफ शिद्दत पसंद बयानात दिए हैं, ताहम उनकी हरीफ मरीन ली पेन को इस हवाले से इंतहाई सख्तगीर समझा जाता है। इंतहाई दाएं बाजू की जमात नेशनल फ्रंट के रहनुमा मरीन ली पेन फ्रांस को यूरोप से बाहर निकालना चाहती हैं और वो तारिकीन वतन और मुसलमानों के बारे में सख्तगीर नज़रियात रखती हैं। उनका नारा है कि सबसे पहले फ्रांस, जिसके लिए बकौल उनके वो फ्रांस को इस्लामी बुनियाद परस्ती, आलमगीरियत और यूरोपीय यूनियन से निजात दिलाना चाहती हैं। पेन इमिग्रेशन कवानीन में सख्ती लाने की हामी समझी जाती हैं और सन 2015 के पेरिस हमलों से कई बरस कबल ही उन्होंने इमिग्रेशन और शिद्दत पसंद इस्लाम के बारे में बढ़ चढ़ कर बात की थी। पेरिस हमलों के फौरन बाद उन्होंने खासा सख्त बयान देते हुए कहा था कि ऐसे गैर मुल्कियों को हमें अपनी सरजमीन से निकाल देना चाहिए जो नफरत फैलाते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे मुसलमानों की दोहरी शहरियत भी ख़त्म कर देनी चाहिए जो शिद्दत पसंद नज़रियात रखते हैं।
خیال رہے کہ فرانس میں پیغمبر اسلام کے متنازع خاکوں سے متعلق تنازعات وقتاً فوقتاً زور پکڑتے رہے ہیں۔ ایمنوئل میکرون کے دور صدارت میں سن 2020 میں ہی فرانس میں پیغمبر اسلام کے متنازع خاکوں پر جو واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد فرانس نے مبینہ اسلامی شدت پسندی کے خلاف جو موقف اپنایا، اس کی عالمی سطح پر بہت سے لوگوں نے حمایت کی، لیکن عالم اسلام میں اکثریت نے اس پر برہمی کا اظہار کیا۔ میکرون کے بیانات کے بعد سے مسلمان ممالک خاص طور پر مشرق وسطی میں فرانسیسی مصنوعات کی بائیکاٹ کی مہم نے زور پکڑا تھا۔ فرانس میں میکرون ایک بار پھر جیت گئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اب فرانس میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور جرائم میں کمی واقع ہوگی یا یہ سلسلہ پہلے کی طرح تقویت حاصل کرے گا۔ فرانس کے مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً اپنی حب الوطنی ثابت کرنی ہوگی اور دھماکوں کے بعد سب سے پہلے شک کی سوئی بھی ان پر ہی ہوگی، کیونکہ حکمراں طبقہ اور اپوزیشن دونوں اسلام مخالف شدت پسند بیانات دیتے رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ یہاں رکیں گے ایک بریک کے لیے، بریک کے بعد پھر لوٹتے ہیں۔ Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's عالمی منظر میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے ترکی کے دارالحکومت انقرہ کے مختصر دورے کے دوران ترک صدر رجب طیب اردغان سے ملاقات کی۔ دارالحکومت انقرہ میں صدارتی کمپلیکس میں ہونے والے استقبالیہ کی کوریج کی پریس کو اجازت نہیں دی گئی ہے۔ نیٹو کے رکن ملک ترکی نے ماسکو اور یوکرین دونوں کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات برقرار رکھے ہیں۔ ترکی نے روسی اور یوکرینی وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان بات چیت کی میزبانی کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان کے دفتر سے جاری کردہ تحریری بیان میں اعلان کیا گیا ہے کہ گوتریس کے دورہ انقرہ کے بعد وہ 28 اپریل کو روس کے دارالحکومت ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوتین اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کریں گے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان سے داغے گئے ایک راکٹ کا جواب گولہ باری کی شکل میں دیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ملک کے شمالی حصے میں لبنان سے ایک راکٹ داغا گیا تھا جس کا جواب گولہ باری کی شکل میں دیا گیا ہے۔ داغے گئے راکٹ کے بعد علاقے میں نصب الارم سسٹم فعال ہو گئے۔ ایک بیان میں بتایا گیا کہ اسرائیلی فوج کا توپ خانہ لبنان کے اہداف پر بمباری کر رہا ہے اور اسرائیلی سرزمین پر راکٹ حملوں کا جواب فائرنگ کے ذریعے بھی دیا جا رہا ہے۔
दूसरी जानिब लेबनान से इस बारे में किसी किस्म का बयान जारी नहीं किया गया है। काबिल ज़िक्र बात है कि 2 साल से लेबनान इसराइल सरहद पर अमन था, मगर ये रॉकेट हमला उस वक्त किया गया जब मस्जिदुल अक्सा में इसराइल और फ़िलिस्तीनियों के दरमियान कशीदगी उरूज पर है। इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात रखने वाले 3 मुस्लिम ममालिक मिस्र, उर्दन और मुत्तहदा अरब अमारात के रहनुमाओं ने काहिरा में मुलाकात की ताकि यरूशलेम में कशीदगी पर बातचीत की जा सके। बातचीत के बाद एक बयान में कहा गया कि मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल-सिसी, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दुवम और अबूधाबी के वलीअहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान, मुत्तहदा अरब अमारात के डिफेक्टिव लीडर ने यरूशलेम में पुरअमन रहने की अपील की है। उन्होंने इसराइल पर यह भी जोर दिया कि वो 2 रियासती हल को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम इक़दामात को रोक दे और फ़लस्तीनियों के साथ संजीदा मुज़ाकरात की राह को दोबारा हमवार करे। काबिल ज़िक्र है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने अमन मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हुए फ़लस्तीन की आज़ादी की मुखालफत की है, लेकिन मगरबी किनारे और गज़ा में हालात ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात करके तनाव को कम करने का अहद किया है। दो सालों के बाद बांग्लादेश के मुसलमानों को कुछ बंदिशों में कारोबार की बंदिशों से निजात मिली है। मसाजिद आबाद हैं, लोग इबादतों में मसरूफ़ हैं, बाज़ारों की रौनकें भी काबिल दीद है। मसाजिद में इज्तिमाई इफ्तार पार्टियां हो रही हैं और बाज़ारों में ईद की शॉपिंग ज़ोरों पर है। लोग ख़ानदान और दोस्तों से मिलने के लिए सफ़र कर सकते हैं और अपने वालिदैन, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ ईद मना सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। यह है बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के बाजारों का मंजर। इस नज़ारे से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को कोरोना की वबा से नजात मिल गई है। तभी बाजारों में रौनक और भीड़ भाड़ नजर आ रही है। 2 सालों के बाद लोगों को ऐसी आज़ादी मिली है। इस मुस्लिम अक्सरियती मुल्क में बांग्लादेशी मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस रोज़े रखने के साथ साथ ईद के लिए कपड़े और तहाइफ खरीदने में मसरूफ़ हैं। उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि उनको कोरोना की पाबंदियों से नजात मिल गई है। ताहम गैस और अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से माह मुक़द्दस के दौरान चीज़ों की खरीदारी कदरे मुश्किल हो गई है। আনন্দ লাগতেছে না, এবার 2 বছর ঈদ করতে পারে না, মনের মতন এবার মনের মতন ঈদ করব, আনন্দ করব, ভালো করতেছি, আত্মীয়জনের সাথে দেখা করব, যাইতে পারবো। এই কারণে কেউ দেশে যাইব, কেউ ঢাকা থাকবে, ভালো লাগে না। ইকোনমিক প্রবলেম সলভ করার জন্যই মনে করেন যে প্রোডাক্টের দাম বেড়ে গিয়েছে, তো এইটাই আর কি। লাস্ট 2 ইয়ার্সের জন্য প্রোডাকশন হয়নি, তারপরে মনে করেন মানে আমাদের তো খরচ আর বন্ধ হয়নি, স্টাফদের বেতন, তারপরে দোকান মানে ইউটিলিটি খরচ এগুলো তো আর বন্ধ হয়নি, এগুলো তো আমরা দোকান বন্ধ করে আমাদের দিতে হয়েছে, তো এগুলো তো আমাদের পকেট থেকে গেছে, তো এগুলো রিকভার করতে হচ্ছে। শুধু আমি না, পুরা মানে যারা ব্যবসায়ী সবাই আর কি, সবারই একই সমস্যা। তো এখন দেখি আল্লাহর রহমতে ভালোই চলতেছে। এইবার পুরোপুরি মনে হয় না রিকভার করা যাবে, একটু টাইম লাগবে। बांग्लादेश में रोजाना इन्फेक्शन और अमवात की तादाद में मुसलसल कमी देखी गई है, जिसके बाद हुकूमत ने पाबंदियां खत्म कर दी और मुल्क में माशी, तिजारती और मजहबी सरगर्मियां बहाल हो गईं। 2 साल के बाद बांग्लादेश में मुसलमान मामूल के मुताबिक रमज़ान के रोज़ों और इबादतों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मसाजिद में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जा रहा है और लोग मुक़द्दस महीने में अल्लाह से रुजू हो रहे हैं। लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि वो इस बार अपने अहले खाना के साथ ईद मनाएंगे और सबके लिए शॉपिंग करेंगे। গত 2 বছর তো করোনার জন্য সবাই খুব আতঙ্কে ছিল, আমরাও আতঙ্কে ছিলাম। হসপিটালে জব করতাম, আমার বাচ্চাটা ছোট ছিল, সব সময় একটা ভয়ের মধ্যে থাকা হয়েছে। আবার মাঝখানে আমার জবটাও চলে গেল। এখন আল্লাহর রহমতে দেশের পরিস্থিতিও ভালো, করোনা এখন নাই এরকম। আমিও এখন নতুন করে জব পেয়েছি। আল্লাহর রহমতে এবার ঈদটা আমরা ভালো মানে আনন্দের সাথে করব, সবার জন্য শপিং করব। গত 2 বছর তো বাড়িতেও যেতে পারি নাই, আব্বু আম্মুর সঙ্গেও ঈদ করা হয় নাই। এবার ইনশাল্লাহ
বাড়িতে যাব, আব্বু আম্মুর সঙ্গে ঈদ করব, সবাই আত্মীয় স্বজন সবাই মিলে ঈদ করব। গত 2 বছর করোনাকালীন সময় এখানে গভর্নমেন্টের বিধিনিষেধ ছিল বিধায় আমরা করতে পারিনি। এবছর আমরা শুরু হয়েছে যে গভর্নমেন্টের বিধিনিষেধ উঠে যাওয়ার পরে কিছুটা শিথিল হওয়ার কারণে আমাদের এইটা আমরা শুরু করতে পেরেছি। कोरोना की बंदिशों में नरमी से लोग भरपूर फायदा उठा रहे हैं। मसाजिद में लोग बरकत, बख्शिश और रहमत के लिए अल्लाह के सामने दुआ गो हैं। वहीं बाजारों में खरीदारों की भीड़ है और रमजान की रौनकें भी काबिले दीद हैं और ईद की तैयारियां भी जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ईरान का कहना है कि सऊदी अरब के साथ हालिया मुज़ाकरात मुस्तक़बिल के हवाले से मुस्बत रहा है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद ख़तीब ज़ादा ने कहा कि अगर मुज़ाकरात को आला दर्जे की सियासी सतह पर फ़रोग़ दिया जाए तो हम मुख्तलिफ़ शोबों में तेज़ी से पेशरफ्त की तवक्को कर सकते हैं। ख्याल है कि इराक़ हुकूमत की कोशिशों से सऊदी अरब और ईरान के माबैन मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़ हुआ और मुस्तक़बिल करीब में दोनों हरीफ ममालिक के ताल्लुकात बहाल होने की उम्मीद की जा रही है। इराक़ की सरहदें ईरान और सऊदी अरब दोनों से मिलती हैं। इत्तलात के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान जुमेरात को इराक़ की सालिसी में मुज़ाकरात का 5वां दौर बगदाद में अंजाम पाया, जिसमें दोनों अतराफ़ के सिक्योरिटी हुक्काम के साथ साथ इराक़ और ओमान के हुक्काम ने भी शिरकत की। جلو بود، گفتگوهای مثبتی بود. چارچوب هایی که از قبل پیش بینی شده بود در این گفتگوها تماما مورد گفتگو قرار گرفت، مورد بررسی قرار گرفت. گفتگوها جدی بود. می توان گفتش که اگر این گفتگوها به سطح سیاسی درجه 1 ارتقا پیدا کنه می توان انتظار داشت که به سرعت شاهد پیشرفت‌های جدی در حوزه‌های مختلف مورد گفتگو در چارچوب این مذاکرات باشیم. بفرمایید. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और यूरोपीय कमीशन की चीफ उर्सुला वन डेर लायन के बीच दो तरफा मुलाकात हुई। दोनों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मुस्तहकम करने पर जोर दिया और ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के क़याम पर इत्तेफाक किया। रवां साल हिंद यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात के 60 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। दोनों लीडरों ने बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात से कबल यूरोपीय कमीशन की चीफ उर्सुला ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से भी मुलाकात की। We will have many topics to discuss, from security to the fight against climate change, but certainly we will look also intensively at technology, digitalization and trade. And there I'm very glad that you, Prime Minister, and I agreed to put in place a Trade and Technology Council. The European Union has only one Trade and Technology Council in place, and that is with the United States. And I think therefore it is telling that it was so important for us to put up a second Trade and Technology Council with India. दुनिया के अमीर तरीन शख्स और अमरीकी कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने की पेशकश की है, जिसके बाद ट्विटर के 11 रुकनी बोर्ड की मीटिंग हुई। बोर्ड मेंबर्स ने कंपनी को खरीदने के हवाले से एलन मस्क की $46.5 बिलियन की पेशकश पर तबादला ख्याल किया। बताया जा रहा है कि 11 रुकनी बोर्ड एलन मस्क से मुलाकात भी करेगा, जिसमें मुआहदे से मुताल्लिक गुफ्तगू की जाएगी। काबिल ज़िक्र है कि मस्क ने इसी साल ट्विटर के शेयर खरीदते हुए 14 अप्रैल को कंपनी को खरीदने का इरादा जाहिर किया था। उन्होंने 9% से ज़ायद तकरीबन $3 अरब की मालियत के 7 करोड़ 34 लाख से ज़ायद हसस खरीदे, जिसके बाद वो ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर भी बन गए थे। मस्क का कहना है कि वो ट्विटर में कुछ खामियां देखते हैं और इसे दुनिया भर में आज़ादी या इजहार राय के प्लेटफॉर्म में तब्दील करना चाहते हैं। आज शिमाली लबनान में 7 अफराद की आखिरी रसूमात अदा की गई, जब हफ्ते के आखिर में तारकिन वतन से भरी एक कश्ती डूब गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब लबनानी बहरिया ने उसे ज़बरदस्ती साहिल पर लाने की कोशिश की। कश्ती में ज़्यादातर लबनानी और शामी अफराद सवार थे, जो बेहतर ज़िंदगी की तलाश में लेबनान से यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। बहरिया ने 47 अफराद को बचा लिया और कुछ अभी तक लापता हैं। ये छोटा जहाज़ तकरीबन 60 अफराद को ले जा रहा था, जो इसकी गुंजाइश से 15 गुना ज़्यादा था। तराबलस में ख़वातीन बालकनियों से रो रही थी जब लाशों को मस्जिद में ले जाया गया और सोग में फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी। जनाजों में दर्जनों अफराद ने शिरकत की। महाजरीन की कश्ती हफ्ते की रात साहिली कस्बे कलमून से रवाना हुई थी।
मुश्तइल रिहायशियों ने इतवार के रोज़ तराबलस में एक मरकजी फौजी चौकी पर हमला किया। फौजियों ने पथराव किया, जिन्होंने जवाब में हवा में फायरिंग की। लेबनान के सबसे गरीब शहर तराबलस में मुश्तइल अफराद ने कई सड़कों को ब्लॉक करके कुछ दुकानें बंद कर दी। عندنا 7 أرواح مفقودين كلهم هذا جنازة هلا لكم وهيدي جنازة هيدي هيك موجودة هيدي لزوجة ابن خيي ولبنته والباقيين بعدهم مفقودين غير مبينين غير ظاهرين। عالمی منظر میں فی الحال اتنا ہی، آداب۔